development, and now I have grown to be a full stack engineer. I've had a design internship previously at iNeuron, had front end and DevOps engineering experience at Locus Connect, and also have had research internship experience at NYCU Taiwan. And I'm currently building Startup Hire, a recruitment platform. So, the first thing that I would like to know from everyone is what is the crowd like? Which year students are we talking about? Could you please share your in the chat whatever year you belong? I hope I'm audible. You are audible, sir. First, yeah, lot of firsts. Okay. Any and do you guys have experience with Git earlier? First year. Yeah, so a lot of first and second year crowd right here. So I would like to give you an introduction about what Git really is. So let's start with what, just a second. I hope the audio is better now. I think my fan was very disturbing. I hope it's clear now. So let's get started with it. So, what is Git? So, in software engineering, the main problem with handling software is we need to have a version system. So, Git is actually a version management system. Version control system. VCS stands for VCS. So, Git actually helps us maintain software and records of software so that we can revert back to an older version of software, let's say, and make parallel branches in timeline of software, and then go about contributing in a team. It really helps us in that. So first use case that we'll talk about today is that it keeps track in the changes of code. I hope not a lot of people, if they have had experience with coding, but Git is majorly used for text based files. So, in which the line numbers can be tracked. So, here you can see in the first statement, we have an expression int a equals 1. It's in the line number 1, and we have three lines, likewise a, b, and c. So, let's say we have first version of our file, and in the next version we have another line addition, so we can commit these changes and host it inside a Git versioning system. So this is what Git is really powerful for. So you can go back into the time and see what changes you made in your program or your text file to help you understand better. The second thing is, so where does Git actually store all this code? So the main problem with handling Git is that we have a problem of maintaining single version of code. So let's say this is a local machine called Sheila. Let's say she has her Mac, and here is, let's say, Binod. He has his own Mac. So we have a central repository called GitHub, Git server, or let's say a Git repository. So we can pull all these centralized changes from there, and then Sheila can pull her changes from GitHub, and then Vinod can clone the local repository to their local machines. So the first thing I am going to introduce you is about GitHub and what GitHub really is. I hope my screen is visible. This was what GitHub looks like. GitHub is a code sharing platform, and like I said, Git is what manages all the software. So this is Git. So this might be your terminal.
I hope my terminal is visible. Can someone confirm in the chat? Yep, I hope it's visible. So if we see in the command line, we have just a second. Yeah, git dash dash version. So I'm on a Apple machine. So Apple comes pre-shipped with a Git version, which is version 2.39.3, let's say. And if you have, let's say, a Windows system, you might have installed Git Bash. So in your Git Bash, in the Git Bash version of your system, you can do git dash dash v and then get the Git version of your Git. Okay, so I have prepared. So we can also go through some basic Linux commands today. So this is the command for changing a directory, cd. Cd stands for changing directory. So now I am in my root directory. Ls stands for listing all the directory what's all over there. So ls minus a stands for listing all the directory, which also includes the hidden files, all the dot files that we have. Like let's say we have a dot zshrc. These are all config files which are used for various programs in your system. As you proceed learning more about software development, there will come a time where you'll have to work with Docker, things like Expo, other systems as well. Okay, other systems as well. I was informed that I could use Hindi as well. So if the, yep. So I hope everyone understands what a directory is. Directory is just synchronous like a folder. So let me show you a finder. So this is my directory. So let's say I have a code folder where I maintain all my coding folders, which is also stands for directory. Just a second. Yeah, just a second. So in my code, we have self folder, and inside self folder, we have a Git workshop. So let's navigate and go to there. So we have here the code folder. So let's change directory to code and then list directories. And inside self, I have a directory called Git workshop. Okay. So let me first not go inside this right now. So cd dot dot, what cd dot dot does is it moves up to the parent directory. So let me do ls minus la. So if you see here, it lists all the files here. So if you can see here, there's a listing of dot dot. It means that you can go up a folder, whatever folder you are currently in. Let's say in the self folder, it comes from the parent code, so you can go onto the code folder. I hope it's understandable. Let's get started with making a folder. So to make a folder, we have a command called mkdir, make directory. Mkdir, let's say git, and let's say git dash github workshop. All right. So we already have a folder. To check it, we need ls. So you can see here, let's say git and github workshop. So let's go inside that git GitHub workshop. So there always is a feature of auto completion. Whenever you are halfway there into naming your folder, you can press tab and it auto completes. If your terminal is smart enough, you might have auto complete on, or you can set it up by Google some stuff. So we are inside GitHub workshop. So now we want to manage this folder as a Git repository. So we need to initialize it.
So let me clear the screen and type in a command. Your first git command will be git init. So what it does is it initializes a Git repository on the current folder. When I did is what does it say? It says initialized empty Git repository in this folder. So now it's a here's a funny thing called .git folder. All the magic that really happens inside Git is inside .git folder. We'll come into it if we have time later on. Otherwise, people who are just starting out confuse हो जाएंगे नहीं तो, है ना? Let's move on to some more. Like I said, we were talking about the local Git repository. Uh, I hope everyone has made their GitHub account. If you guys have made your GitHub account, please post yes in chat so that uh, we can also proceed practically. सो दैट हम लोग गिटहब से भी एक रिपॉजिटरी बना के क्लोन करके भी काम करना चालू करते हैं, है ना? तो अभी तो मैंने लोकल के बारे में बताया. नाउ वील अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट गिटहब इज. सो दिस इज व्हाट गिटहब लुक्स व्हेन इट्स साइंड आउट. सो okay, cool. So let me just open GitHub and show you. This is GitHub. I hope my internet is working. Yes, it is. Hopefully. Yeah, hopefully. Yes. Okay. So here, when you go to your profile, you can go to this plus icon and create a new repository here. And fun little trick that I have for you is you can also type repo.new. What it does or if you have your GitHub signed in your browser, it automatically goes to the new repository page. So here you can see github.com/new. So let's name our GitHub repository like we did here, git-github-workshop. So all of you, what you guys can also do is, let's not make it let's not wait for everyone to make it. I'll ask everyone to fork this account, fork this repository, and then post some changes from your account later when we are done into the course. So let me just do this for you for now. Git-github workshop. I hope it's there available. Yes. So this is the Git repository name. Description is a small description about why you want to what you want to accomplish using this repository. Let's say we are Git and GitHub training repository. Sounds good. And this is a checker if you want to keep it public or private. So if you keep it public, it becomes an open source project. This is open source. Open source is nothing different. इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है. ओपन सोर्स से बहुत लोग डरते हैं, पर ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है. आप भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बना सकते हो. आपके दोस्त उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो आप दोनों ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करोगे, है ना? So this does is it makes an empty repository. So we can also add a readme file. So रिपोजिटरी की सैनिटेशन के लिए हम हमेशा एक रीडमी फाइल अटैच करते हैं ताकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन लिख पाए. अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, उसको चालू कैसे करना है, हाउ वी वांट टू स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट, वी कैन राइट दैट इनसाइड आवर रीडमी फाइल. एंड git ignore file is something that we require when we are working with environment variables and something that we don't want to post on GitHub, so which cannot be exposed on the internet, right?
सो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। धीरे धीरे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखोगे तो गिट इग्नोर के बारे में भी अच्छे से समझ में आएगा। लाइसेंस होती है कि लाइसेंस आप क्या अलाउ कर रहे हैं। बहुत सारे लाइसेंसेस में जैसे MIT लाइसेंस बहुत नॉर्मल लाइसेंस है। इसको देने पे आप ये बता रहे हो कि you allow other people to fork your project, modify your project and use it for their own purpose. ऐसी और भी बहुत सारे लाइसेंस होते हैं। यू कैन गो थ्रू एंड रीड all these licenses if you are curious enough. So we created a repository. After creating a repository, this is how it will look like. We already had a license and probably an MIT license. Yeah, an MIT license and a readme which says the GitHub repository name and the description that we added. So here is the green button. You need to go on HTTPS and then copy this, and then we'll understand what clone is. So now we'll come back to the slides and understand. थोड़ी theory पढ़ लेते हैं, फिर practical पे आएंगे। हमने अभी तक क्या कर लिया है? हमने अभी तक हमारा रिपोजिटरी बना लिया है, एंड देन उसके बाद हम थोड़ी और थ्योरी पढ़ेंगे ताकि और समझ में आए, है ना। सो द फर्स्ट थिंग वाज दैट वी वांटेड टू ट्रैक फाइल्स, कि वी कैन ट्रैक फाइल्स यूजिंग गिट। एक कमिट, फर्स्ट कमिट में फाइल यहाँ तक पहुँचा है, दूसरे दिन तक इतना कोड कर लिया, तीसरे दिन तक थोड़ा कुछ काम नहीं कर रहा है तो हटा दिया। एंड लाइकवाइज सिंक्रोनाइजेस कोड। और दूसरा फीचर क्या है? इट सिंक्रोनाइजेस कोड बिटवीन डिफरेंट पीपल। सो लाइक आई सेड, दिस लोकल मशीन एंड दिस लोकल मशीन, ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ही प्रोग्राम पे काम कर रहे हो पर सिंक्रोनाइज्ड ना हो, पर एक सेंट्रल रिपोजिटरी या सेंट्रल गिट सर्वर के होने के वजह से आप क्या कर सकते हो? इनको पुल करके सिंक्रोनाइज कर सकते हो कि दोनों के पास सेम कोड आ गया, दोनों ने क्लोन किया रिपोजिटरी एंड दोनों के पास सेम कोड है। सो और फिर ये दोनों अपने इंडिविजुअल चेंजेस भी कर सकते हैं। इस लोकल मशीन ने लाइन नंबर 2 पे बी को इनिशियलाइज किया है, इस कोडर ने थर्ड नंबर लाइन पे एक नई एंट्री डाली है डी वेरिएबल की, जिसकी वैल्यू 4 है। तो ये दोनों इंडिविजुअल चेंज कर रहे हैं और ये दोनों साथ में पुश कर सकते हैं, और इन दोनों कोड को सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। पर इसमें क्या फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी इनकाउंटर हियर इज कि because both these local machines are working on same files and same almost same lines, because इस लोकल मशीन में लाइन नंबर 2 में b इक्वल्स 2 है, इस मशीन में लाइन नंबर 2 पे int c इक्वल्स 3 है। तो यहाँ पे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं। तो इसको रिजॉल्व करना हम लोग थोड़ी देर बाद सीखेंगे कि कैसे रिजॉल्व किया जाता है। पर ये एक कॉमन प्रॉब्लम है व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन द सेम फाइल, encounter merge conflicts. We can resolve that later. So, and when it's resolved, everything is synchronized and everyone can pull the changes in their local repository. So this local machine can have all the changes updated and this as well. So the third thing is we can test changes without losing the original. So let's say हमें कुछ टेस्ट करना है और हमें ओरिजिनल जो कोड है उसको बिगाड़ना नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक ब्रांच बना लेंगे। इसको टेक्निकली गिट के लैंग्वेज में ब्रांच बोलते हैं। ये आप समझ सकते हो एक सेपरेट टाइमलाइन की तरह, या या एक ब्रांच की तरह ही समझ लो। ये जो टाइमलाइन है ये एक मेन ब्रांच है, और उससे सेपरेट एक फीचर ब्रांच आप निकाल के इस पे टेस्ट कर सकते हो, और ये टेस्टिंग जब पास हो जाए तो आप इसको मर्ज कर सकते हो मेन टाइमलाइन से। ये कोड की टाइमलाइन चल रही है, मान लो बहुत सारे लोग हैं। गिट एक्चुअली यूज क्यों किया जाता है? ताकि आप कोलैबोरेटिवली कोड कर पाओ। बहुत सारे, जैसे मान लो एक टीम पे 5-6 डेवलपर्स हैं और 5-6 डेवलपर्स बहुत सारे फीचर्स बनाना चाहते हैं, तो एक स्नैपशॉट कोड का उठाएंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर चेंजेस करते जाएंगे, और जब वो चेंजेस स्टेबल हो जाएंगे तो इस तरह मर्ज कर दी जाएंगी।
तो ये एक और यूज केस हो गया। तीसरा यूज केस हो गया कि हम लोग अगर मान लो कुछ बाद में ऐसा कुछ कोड कर देते हैं कि कुछ फट रहा है, मतलब फटना इज अ रेगुलर टर्म दैट वी यूज इन कोडिंग व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग और सम बिल्ड एरर हैपेंस, something goes wrong, so we can come back to a separate snapshot of code which we can do using git reset, so we can revert back to old versions of code. तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि सबसे पहली चीज की ये ट्रैक करता है कोड के चेंजेस में, तो ये कमिट ट्रैक ऑफ चेंजेस टू कोड। सेकंड में सिंक्रोनाइजेस कोड बिटवीन डिफरेंट पीपल। थर्ड is test changes to code without losing the original, I mean branching as well, and revert back to old versions of code if people have some issues and concerns. They can post them on chat if they understood. Yes, no, आई वुड लव टू हियर, बिकॉज इसके बाद फिर हम लोग गिट कमांड्स के ऊपर जाएंगे डायरेक्टली। थैंक यू केशव, थैंक यू। ओके, गुड, cool. Let's start with git clone, where we left in our practical. यहाँ पे मैंने ये बताया था कि ये वाला पार्ट क्लोन करना है। तो एक तो आप क्लोन भी कर सकते हो, आप रिमोट भी डाल सकते हो। पहले क्लोन सीखते हैं क्योंकि क्लोन की बारी आई है अभी। तो हम लोग क्लोन करते हैं। मैं चलो बाहर चला जाता हूँ यहाँ से, और सेल्फ डायरेक्टरी में है यहाँ पे। चलो इसको हटा देते हैं। अब कोई डायरेक्टरी पूरी तरह हटाने के लिए हम लोग लिनक्स में कमांड यूज करते हैं rm-rf, एक पूरी फोल्डर, उसमें उसमें जितने भी कंटेंट्स है सब कुछ हटाने के लिए रिकर्सिवली उस पूरे डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए rm-rf यूज किया जाता है। तो हम लोग वो यूज कर रहे हैं अभी के लिए, गिट गिटहब वर्कशॉप। इसको उड़ा दिया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, गिट क्लोन। ओके, सो गिट क्लोन की थ्योरी क्या है? गिट क्लोन क्या करता है? गिट क्लोन, ये जो टर्मिनल में आप कमांड लिखोगे गिट क्लोन यूआरएल, इट मेक्स अ कॉपी ऑफ योर रिपोजिटरी एंड स्टोर्स इट इन योर कंप्यूटर। और क्लोन के अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसको हम लोग फोर्क बोलते हैं। जैसे मान लो आप किसी और के रिपोजिटरी में जाओगे, जैसे मान लो मैं गिटहब जाता हूँ और ये फीड है गिटहब की, गिटहब के ट्रेंडिंग रिपोजिटरीज और पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे। जैसे मान लो सबसे ऊपर में मरमेड जेएस का मेरा सॉफ्टवेयर आया है, रिपोजिटरी आया है। सो या ओके, सो वी probably have our, just a second, we need to use our repo. Just a second. I hope it's better now. Okay, cool. So whenever you see a different GitHub repository, you can see a fork icon. इंस्टेड ऑफ क्लोनिंग आप फोर्क भी कर सकते हो। फोर्क करने से ये क्या होगा कि इसकी एक इमेज आपके प्रोफाइल में बन जाएगी। तो यू कैन, so what we can do, I think Shubhankit will also tell about a fun little experiment these guys are planning. There are few errors in this repository, and whoever can fix these errors in the documentation will get some goodies and swags, I believe. So first we'll try to fork this project. So understanding what fork is, so let's say, so we are forking this as it is, and when we create a fork, it forks in our own profile. Let's say, let me create a fork. What this did is it's downloading all the directories, and okay, so it has forked.
एंड नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट क्लोन इज. तो क्लोन हम इस रिपोजिटरी को भी क्लोन कर सकते हैं. देखो, we went to this code icon and then the https tab and then we copied the url. This is the git url. आप इसको देखो तो ये कैसा दिखता है. ये देखो, https github.com slash that beautiful dream github dash workshop dot git. डॉट गिट वाले जितने भी यूआरएल्स होते हैं, या डॉट गिट वाले जितने भी यूआरएल्स होते हैं वो सारे गिट क्लोन, उससे गिट क्लोन किया जा सकता है. तो लेट्स से वी आर क्लोनिंग दिस, but we are not actually cloning this. We wanted to clone something which was in our repository. So let's clone that for now. So we'll go here, copy the link and then git clone it. So now we have cloned it already. Now we'll go into that repository. To change the directory, we use cd command and then go into the repository name, git dash github workshop. Okay, now let me clear the screen. Let's move to the presentation. Now what we have is, so अभी हमने क्या किया, whatever changes were there in the GitHub server, we cloned that into our local system. तो हमारे local system में क्या है, हम अगर कोड डॉट करें तो कोड डॉट, अच्छा, VS Code is the preferred text editor which we are using right now. If you don't have VS Code, you can also preferably ls into this, or you could also use cat command to see whatever is printed in the files. Let's say we want to read what's inside the readme.md. So what is .md? .md is an extension which stands for markdown. Markdown is a kind of a universal language for all the documents, all the text based lightweight text editor. मार्कडाउन के ऊपर बना हुआ है, उसके बारे में भी मैं सिखाता हूँ. पहले देख लेते हैं कि रीडमी में क्या है. So let you can see. So this is hash git dash github workshop. This hash stands for h1. If people have studied html में h1 h2 h6 तक टैग्स होते हैं. तो this stands for the largest heading tag, and then this is a normal text with no formatting. So there are other formattings in markdown as well, which are bullet points, I think italics, which we will cover as we go into the workshop. So for now we can code dot into the VS Code. If you have Windows, you can open your Explorer here and drag and drop this folder into your VS Code icon. That will also do the same thing as code dot. Since we already have this open, so we'll go here. So like you can see, so we have so this is some error. It says कि हमारी हेडिंग के नीचे एक लाइन खाली होना चाहिए, तो हम खाली कर देते हैं. तो लिंटर भी खुश हो गया. We have saved this. So since we don't know about all other commands, तो अभी इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, तो git जो है ये क्या करता है कि git को पता था अभी ये git and github ट्रेनिंग रिपोजिटरी, ये जो लिखा हुआ था ये 2 नंबर लाइन पे लिखा हुआ था, पर अभी चेंज होके वहां से डिलीट हो गया और 3rd नंबर लाइन पे आ गया. तो दिस इज हाउ git manages your changes and stores them into different commits. अब commit के बारे में भी हम लोग बाद में सीखेंगे, क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है git lens I believe. तो वो क्या कह रहा है कि एक कमिट पहले से हो रखा है जिसका नाम इनिशियल कमिट था, जो कि गिटहब ने खुद किया है, और ये क्या है, गिटहब ये उस कमिट की कमिट हैश है. तो हर एक कमिट की एक कमिट हैश होती है जो कि असाइन हो जाती है उस कमिट को. तो हम लोग देखेंगे कि गिटहब पे क्या चल रहा है. गिटहब पे क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे देखो एक कमिट हो रखा है, फर्स्ट कमिट मेड बाय मी एंड वेरीफाइड. दिस इज द कमिट डिटेल्स. तो कमिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने लाइसेंस अपडेट कर दिया है कि इतने सारे कोड जो हैं ऐड हुए हैं प्लस प्लस प्लस.
and then this is also added. Now we will understand other git commands to proceed further for our experiment. So other command is git add. अब हम लोगों ने समझ लिया कि क्लोन कैसे करते हैं, तो सेकंड पार्ट आ गया कि हाउ वी आर सपोज टू गेट ऐड द चेंजेस। तो हमने अभी तक क्या चेंजेस किए हैं वो देखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो जो भी चेंजेस हुए हैं, तो मैंने जैसा बताया कि ये टू लाइन नंबर 2 पे सारा टेक्स्ट था और हम लोगों ने 3 पे लिया है, तो चेंजेस तो हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, तो दो कमांड्स हैं, एक गेट ऐड फाइल नेम है, तो हम लोग सेपरेट प्रैक्टिकली करना है अभी नहीं, अभी प्रैक्टिकल नहीं करना है। आप लोग एक असाइनमेंट आएगा उस समय वॉक थ्रू पे कर सकते हो, पर ये आप अभी भी प्रैक्टिकली कर सकते हो, पर आपको शायद दिक्कत होगी। तो बहुत सारी, तो अभी आई रिकमेंड पीपल watching this webinar, and then later on when I ask you to do it, then people can follow up. So git add git add, let's say readme.md, ये हो गया सेपरेट, ऐड कर दिया हमने कि एक फाइल इसको ट्रैक कर लीजिए गिट। तो ये क्या किया, अब देखने के लिए कि क्या हुआ है, आप गिट स्टेटस लिख सकते हो। गिट स्टेटस से बताया जाएगा कि on branch main your branch is up to date with origin slash main। अब origin slash main क्या है ये मैं बताता हूँ जब मैं branch के बारे में बात करूँगा। how to check which directory you are on git, directory you are on git, directory तो ऐसे पता चलती है pwd print working directory। अगर आप ब्रांच के बारे में बात कर रहे हो तो बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं जो कि ब्रांच ऐसे दिखा देते हैं टर्मिनल में ही, और नहीं तो फिर गिट ब्रांच लिखते हैं तो ब्रांच भी बता देती है कि आप कौन से ब्रांच पे हो। तो हम मेन ब्रांच पे हैं, और इस एडिटर से बाहर जाना है तो कंट्रोल जी दबाएं, तो आप इससे बाहर आ जाते हो। तो मूविंग, जस्ट क्लियरिंग सम डाउट इन द चैट। सो and now we have git add। so git add file name, तो हमने किया git add readme.md। yeah, I think someone has some doubt। Manish Kumar Kumawat, I believe your mic is on, so add some file history। Okay, cool। So what this command does is what this command does is it adds your file to a staging area। तो आप git को ऐसा समझ लो, एक एनालॉजी दे रहा हूं मैं कि whenever you want to make some changes in git, you can perceive those changes as taking a photograph। सो तो एक फोटो लेने के लिए आप क्या करते हो, लोगों को स्टेज पे बुलाते हो, खड़ा करवाते हो, फिर फोटो खींचते हो। तो सबसे पहले ऐसे ही इस एनालॉजी के हिसाब से आपने गिट में जो भी चेंजेस किए हैं, जैसे जैसे आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते जा रही है तो आप टेक्स्ट फाइल में चेंजेस करते जाओगे, वैसे ही आप गिट ऐड फाइल नेम करोगे और फिर उसके बाद स्टेजिंग एरिया में लाओगे, और उसके बाद की चीज़ें हैं गिट कमिट और गिट पुश, उसके बारे में बाद में आते हैं। तो ये बताता है कि गिट गिट में कौन से फाइल की रिवीजन नेक्स्ट रिवीजन में इंक्लूड करना है। तो हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम हमारे गिट रिपोजिटरी को प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट रिवीजन के लिए। तो पहली रिवीजन में हमारा फाइल कुछ ऐसा था, और दूसरे रिवीजन में ऐसा है ना। तो ये रिविजन्स मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, है ना। और सब कुछ ऐड करने के लिए मान लो हम बहुत सारे बना देते हैं, चलो मान लो टेस्ट डॉट एमडी। तो एमडी में दिस इज टेस्ट मार्कडाउन
फाइल। तो जैसे मैंने बताया था कि मार्कडाउन भी सिखाऊंगा, तो मार्कडाउन में ये बुलेटेड पॉइंट्स होता है, पॉइंट्स, आई थिंक नंबर्ड पॉइंट्स। I think Copilot could help us, but let's say मार्कडाउन इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज। तो आप मार्कडाउन गाइड पे भी जाके सीख सकते हो मार्कडाउन कैसे, क्या सिंटैक्स क्या होता है, बेसिक चीट शीट देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये हेडिंग है। मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी असाइनमेंट होगी, जिससे आपको शायद गुडीज मिल सकती हैं, तो वो भी मार्कडाउन में ही है। तो मार्कडाउन को समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो हेडिंग कैसे लिखते हैं, ये H1 H2 H3 हो गया। H1 का मटेरियल एक के आगे, हैश के आगे स्पेस, फिर H2, तो ये हेडिंग 2 हो जाएगी, फिर हेडिंग 3। बोल्ड टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, जैसे व्हाट्सएप में आपने यूज किया होगा, व्हाट्सएप भी लाइट वेट मार्कडाउन फॉर्मेट सपोर्ट करता है। तो उसमें भी आप 2 एस्ट्रिक के बाद अपना बोल्ड टेक्स्ट लिखो और फिर 2 एस्ट्रिक्स करो, तो फिर वो अपने आप बोल्ड हो जाता है। तो ये एक लाइट वेट टेक्स्ट एडिटर है। इटैलिक्स के लिए ये ब्लॉक कोट, मतलब कुछ कोट लिखना है तो ऐसा हो जाता है। और इसको देखना है VS कोड में, तो आप यहाँ पे जाएं और प्रीव्यू का कोई तो होगा ऑप्शन, लेट मी चेक। प्रीव्यू ओपन प्रीव्यू। तो ये देखो, ये ब्लॉक कोड कुछ ऐसा है। जैसे मान लो कोई कोड आपको लिखना है, तो आप कोड ऐसे लिख सकते हो। फिर आए ऑर्डर्ड लिस्ट पे, अनऑर्डर्ड लिस्ट पे। फिर कोड ऐसे लिखा जाता है बैकटिक्स के द्वारा। सिंगल लाइन कोड अगर ऐसे लिखना है और डबल लाइन लिखना है तो थोड़ा कुछ थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा। इसके अंदर देखो, फेंस्ड कोड ब्लॉक, तो इसके अंदर ये एक जेसन है। अगर आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो, या तो पाइथन में डिक्शनरी पढ़ा हो, वैसे जावास्क्रिप्ट की दुनिया में जेसन होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो उसको इसके अंदर लिख सकते हो। ये बैकटिक्स के आगे आप प्रोग्राम का नाम भी लिख दो तो सिंटैक्स हाइलाइटिंग भी हो जाती है गिटहब के अंदर। जैसे एक कोड लिख के देखते हैं। ओके, ज़्यादा हो गया। ओके, जेसन कोड, ट्रेलिंग कॉमा एक देना पड़ेगा जेसन को, है ना। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको प्रीव्यू में देखते हैं, तो ये थोड़ा एक ब्लॉक कोड अच्छा सा फॉर्मेटिंग भी हो गया, की वैल्यू पेयर्स आ गए हैं इसमें। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। नो सिंगल ट्रेलिंग कॉमा, let's ignore this. Where were we? Now we are into, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नया कमांड सीखेंगे जिससे सारे चेंजेस, जितने भी चेंजेस, क्योंकि एक एक करके चेंज करना, ये यूज केस तब काम आता है जैसे मान लो आप बहुत सारे फाइल्स में काम कर रहे हो और आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक फाइल को ही ऐड करना है स्टेजिंग एरिया पे, तब ये कमांड काम आता है। और सब कुछ करना है तो गिट ऐड एस्ट्रिक्स कर सकते हो या गिट ऐड डॉट कर सकते हो, तो इससे सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग गिट, चलो हम यहाँ टर्मिनल से करते हैं, गिट ऐड स्टार, इससे सब कुछ ऐड हो गया। गिट स्टेटस किया तो ये 2 फाइल मॉडिफाई हो गए हैं, है ना। तो अब यहाँ पे जाते हैं, कहाँ गया, हाँ ओके। तो डेमो कर लिया हमने। हम लोग अब थोड़े और चेंजेस करके गिट डिफ के बारे में समझते हैं। चलो, अब क्या किया था समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो थोड़ा बहुत डाउट्स ले लेता हूँ। जस्ट डिलीट द फोल्डर, नॉट टू डिलीट, okay. If you have cloned something on your लोकल मशीन में डिलीट करना तो कोई इशू नहीं है।
अगर आपने कुछ फोर्क कर लिया है और आप उसको गिटहब से डिलीट करना चाहते हो, तो आपको सेटिंग्स में जाके उसके सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और यहाँ से डिलीट दिस रिपॉजिटरी, आई वांट टू डिलीट दिस रिपॉजिटरी, और बाकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। तो ऐसे आप डिलीट कर सकते हो अपनी फोर्क रिपॉजिटरी, या कोई भी रिपॉजिटरी डिलीट करने का तरीका यही होता है, फोर्क हो चाहे अपनी खुद की हो रिपॉजिटरी। तो हमने कुछ और चेंजेस कर लेने हैं, जैसे मान लो चलो पाइथन लोगों को आती होगी नहीं आती होगी, तो हम लोग सिंपल लिखते हैं मोर बुलेट्स, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, गिट डिफ देखेंगे। गिट डिफ क्या बोलता है, गिट डिफ तो ये चेंजेस बताता है कि पहले, इससे पहले जो कमिट हो रखा है उसमें क्या चेंजेस थे और अभी क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये बोल रहा है कि इतने सारे लाइंस ऐड हो गए हैं, इतने सारे, ये माइनस हो गया, ये ऐड हो गया है। तो ये हमने क्या किया था, हमने बस ये ऐड किया है, उससे पहले तो हम लोगों ने कमिट कर दिया था। अच्छा कमिट किया कि नहीं, हम लोगों ने डिफ किया है, अब गिट कमिट करेंगे। ओके अभी कमिट अभी करेंगे, है ना, कमिट अभी किया नहीं है। तो डिफ करने से चेंजेस बता दिया, और इससे बाहर निकलने के लिए कंट्रोल जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं हम लोग, गिट कमिट। गिट कमिट क्या कहता है, अब इतने सारे चेंजेस स्टेजिंग एरिया पे ले आए आप अपने सारे कोड फाइल्स को, और फिर उसके बाद अब आपको कमिट करना है कि अब ये पक्का करना है कि ये सारे फाइल अब हमारे नेक्स्ट रिवीजन में गिट के होंगे। तो ये कमांड कुछ ऐसे काम करता है, गिट कमिट -m और उसके अंदर मैसेज। तो कमिट मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे हेल्प यू ट्रैक योर सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर कहाँ पे क्या पहुंचा है। जैसे मान लो आप एक वेबसाइट बना रहे हो, तो आप मान लो पहले दिन पे हेडर बनाए, तो आप कमिट मैसेज दे सकते हो कि एडेड हेडर, और फिर दूसरे दिन तक मान लो आप हीरो सेक्शन बनाए हो और फिर फुटर भी बनाए हो, तो आप ऐड कर सकते हो अपने मैसेज में मीनिंगफुल कमिट मैसेजेस, कि एक फीट हो गया है, बहुत सारे मीनिंगफुल कमिट मैसेजेस होते हैं। तो मैसेजेस के बारे में भी समझेंगे, पहले समझते हैं कि ये कमांड करता क्या है। इट सेव्स द चेंजेस इनटू अ रिपॉजिटरी एज अ न्यू वर्जन और अ कमिट, रिकॉर्ड्स द मैसेज। और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहले ये ट्राई कर लेते हैं। तो अब हम लोगों ने ऐड कर दिया है, पर अब कमिट करना है, तो गिट कमिट -m, फिर मैसेज क्या देना है, एडेड फर्स्ट फर्स्ट फ्यू फर्स्ट मार्कडाउन फाइल्स, है ना। तो ये क्या कह रहा है, एडेड फर्स्ट मार्कडाउन फाइल्स, और ये है कमिट हैश, दो फाइल्स को ऐड किया है 15, जिसमें 15 इंसर्शंस थे। तो 15 नए लाइंस को ऐड किया है आपने अपने रिपॉजिटरी में। क्रिएट मोड test.md, तो test.md नया एक फाइल क्रिएट होता है, जब भी कोई नया फाइल क्रिएट होता है उसका भी एक सेपरेट हैश जनरेट होता है। तो अब हम लोग क्लियर कर लेंगे। और अगर आपको एक ही साथ में दोनों चेंज फाइल और कमिट एक ही साथ करना है, तो गेट कमिट -am, ये मतलब ऑल, जो जैसे आप पहले किया था यहाँ पे गिट एड ऑल, ये वाला स्टेप और गिट कमिट वाला स्टेप एक ही साथ करना है, तो गिट कमिट -am और फिर मैसेज, ये साथ में ही दोनों एक बार कर देता है, तो दो बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है, तो सबसे पहले हम लोग एक चेंज करते हैं और फिर उसको ऐड करके फिर कमिट करते हैं, मोर बुलेट्स, और फिर उसके बाद लेट्स से यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं, जेसन 3 इसको सेव कर दिया। और सबसे पहले क्या करना है, चैट में लिखो गेट ऐड, सारे चेंजेस करने के लिए गेट ऐड एस्टरिस्क, गेट ऐड एस्टरिस्क, है ना। और फिर उसके बाद कमिट करने के लिए गेट कमिट -m
more JSON values, है ना, ये चेंजेस हो गई। अब चलो, अब इसके बाद हम हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गिट स्टेटस। गिट स्टेटस से क्या पता चलता है कि क्या मामला है, लोकल में क्या मामला है, रिपोजिटरी स्टेटस, ATS, गिट स्टेटस। तो ये क्या कह रहा है, इफ इट्स नॉट विजिबल ऑन मेन ब्रांच, गिट स्टेटस बता रहा है आपके रिपोजिटरी की स्टेटस। ऑन, ये कह रहा है ऑन मेन ब्रांच योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मेन बाय 2 कमिट्स, यूज गिट पुश टू पब्लिश योर लोकल कमिट्स। तो ये कह रहा है कि सारा इंटरनली आपने कमिट कर दिया, बस खाली आपको इस आपने रिमोट रिपोजिटरी पे पुश नहीं किया। ये सारे चेंजेस तो आपके लोकल में हो रहे हैं और आपको इसको सिंक करना है आपके रिमोट रिपोजिटरी जो गिटहब पे पड़ा है, उसको करने के लिए आपको गिट पुश लिखना पड़ेगा। तो गिट पुश के बारे में समझते हैं, है ना। गिट स्टेटस से आपको बता दिया कि ये बताता है करंट स्टेटस ऑफ योर फाइल, है ना, सर्वर से मतलब लोकली जो भी चल रहा है आपके, वो उसका स्टेटस बता देता है। फिर उसके बाद गिट पुश से क्या होता है कि गिट पुश से ये सेंड कर देता है सारे कमिटेड चेंजेस को रिमोट रिपोजिटरी में, और इसको लिखा जा सकता है गिट पुश ओरिजिन मास्टर। अभी जब ब्रांचिंग के बारे में समझेंगे तो ओरिजिन मास्टर क्या होता है वो भी समझ लेंगे। तो अभी गिट पुश कर देते हैं, गिट पुश। तो ये क्या हुआ, ये हमारे सारा सारा सामान गिटहब पे चला गया। तो जाके चेक करते हैं कि क्या चल रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा गिट गिटहब वर्कशॉप। और एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है गिट लिंक। गिट लिंक से आप VS कोड में लेफ्ट राइट क्लिक करोगे तो वहाँ से ही गो टू ऑनलाइन लिंक आ जाता है। तो ये इससे आप अपने कोड एडिटर से ही खोल सकते हो अपना गिटहब। तो उसका नाम है गिट लिंक, ये एक्सटेंशन का नाम। ये एक्सटेंशन काफ़ी यूज़फुल है, तो पीपल कैन नोट डाउन दिस फॉर रेफरेंस। अदरवाइज लेट्स मूव ऑन, गो टू ऑनलाइन लिंक, ये बता देगा ऑनलाइन लिंक। यहाँ पे आ गए, ये देखो, ये हमने सारे चेंजेस जो लोकल में किए थे वो आ गए इधर रिपोजिटरी में भी। तो नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू ऑल कैन आल्सो ट्राई मेकिंग योर own GitHub repository and try making all these changes on your local machine and your own GitHub account. So we'll take a small break, I believe. Can we do that, Shubhankit? Can we take a break so that everyone can do on their local? I hope that's okay. I think audible नहीं है. If you can post it on chat, that is also. Yeah, I can always do that. Yep. Okay. Sounds good. I hope everyone can make their own repository, and जो सबसे जल्दी अपने repository की link भेजेगा, it's good for them. So it's a competition now. You all can make your own public repositories, and what you can do is make your first commit in readme.md file. readme.md फाइल में जाके कुछ चेंजेस करने हैं और आपने बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। बुलेट पॉइंट्स में आप अपना नाम लिख सकते हैं। लेट्स से योर नेम इज, लेट्स से समथिंग साई प्रसन्ना को पहले डबल ऑन है। ओके, सो everyone can send their links as soon as possible. I'm waiting for you guys, and meanwhile I can just have some water. या ऑन फोन आई बिलीव सोमेल आप नहीं कर पाओगे फोन पे
फोन पे कर सकते हो पर वो बहुत छोटा होगा एंड इट यू विल नॉट बी एबल टू ओपन अ टेक्स्ट एडिटर इन योर फोन, और फोन में गिट भी इंस्टॉल नहीं होता है, आई बिलीव। तो इट्स अ लिटिल हार्ड। Awesome. Anirudh Sharma has his first. Awesome. Hi, I'm awesome. Anirudh has done his first. Wow, you made your first GitHub commit. That's amazing. Wow. Let's see some more repositories. This is your first step to open source. So I think, how can we make this from scratch as we have joined now? Okay. So, Muskan, what you can do is you can rerun through this repository, or I'll go through again. So what you can do is in your browser you can go to repo.new. In repo.new you can make a new repository using this github.com/new. So here you can type your repository name. What we discussed till now, I'm just sharing that. So you can make your repository name, let's say XYZ, XYX, let's say. And since we have the name as GitHub Workshop, let's keep it like that. हम अपना गिट उसका नाम गिटहब वर्कशॉप रखेंगे यहाँ पे एक, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मैं एक पी हटा देता हूँ, है ना। डिस्क्रिप्शन में आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, गिट एंड गिटहब वर्कशॉप, है ना। एंड देन यू कैन ऐड अ रीडमी यहाँ से, एंड देन उसके बाद गिट इग्नोर। आप ये तीनों नहीं, रीडमी तो आप चेक कर ही देना है ध्यान से, नहीं तो फिर आपको रिमोट एक्सेस करना पड़ेगा, वो दिक्कत हो जाएगी। तो आप ध्यान से ये पब्लिक और रीडमी को चेक कर देना और फिर क्रिएट अ रिपोजिटरी, दैट्स हाउ यू विल मेक योर ओन रिपोजिटरी। एंड देन आफ्टर दैट हमने क्लोन के बारे में समझाया था। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट, आई थिंक यू we will share the recording with you and then you can go through that, है ना। ये awesome, Ayush Soni. Ayush Soni already has done some work. Awesome. Great. Yes, feel free to ask any doubts because this is the first step. अगर आप यहाँ पे अटक जाओगे तो आगे पहुँच नहीं पाओगे. So please feel free to ask any doubts that you have. Otherwise, we'll move on to other important commands from Git. What is use of making this? Can you explain again? What is the use? Oh, okay. So let me show you some important stuff. Let's browse through GitHub. What is the use of making this? So it says author identity unknown. Okay, let me get back to you. Let me show you. Uh, where is the? There is some definitely typed. So this is, let's say this is a project. So let's take a good project. What is a good project? So so let's see, this is a very heavy project and you can see here 85,063 commits. So people are, so there are multiple people who are contributing to the same repository. This is the use of GitHub. So this fosters a lot of collaboration, open source collaboration in the real world. This is how softwares are actually built.
And after you build your software, and inside a different branch, we'll study about branch as well, you can do your CI/CD pipeline so that your software can be deployed on the internet. And there are features like GitHub Actions and other things that really help you do your software engineering seamlessly. तो इसके यूजर्स बहुत सारे हैं. आई थिंक मुस्कान आस्क्ड दिस, सो आई होप आई कुड आंसर योर क्वेश्चन. So when you start learning more and more about GitHub and software development, you'll start maintaining your own software. When you start maintaining your own software day by day, एक दिन में तो पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बन जाता, एक दिन में तो कोई गूगल बनाया नहीं है, धीरे धीरे बनाता है. उनके पास भी एक मोनोलिथ है, मतलब एक ही रिपोजिटरी में पूरा गूगल का कोड है. तो वो लोग भी धीरे धीरे कमिट कर रहे हैं, नए नए फीचर्स आ रहे हैं. जैसे ये देखो, आप क्रोम का जो ये फीचर है, क्रोम का यूआई चेंज हुआ है हाल फिलहाल में. तो ये क्रोम थोड़ा अलग नया सा यूआई लग रहा है. तो ये लोग भी इंटरनली गिट यूज करते हैं टू मैनेज देयर क्रोम सॉफ्टवेयर एंड पब्लिश चेंजेस. जैसे सेटिंग्स में जाऊंगा मैं, अबाउट क्रोम, तो ये देखो, चेकिंग फॉर अपडेट्स. तो ये अपडेट कहाँ से चेक कर रहा है? मोस्ट प्रोबेबली एक वर्जनिंग सिस्टम होगी जो वर्जन मैनेज कर रहा है. 118.0.5993.88 ऑफिशियल बिल्ड ARM64, ये प्लेटफॉर्म का वर्जन है. तो ऐसे ही सिमेंटिक वर्जनिंग भी कर सकते हो आप अपने सॉफ्टवेयर की. सिमेंटिक वर्जनिंग क्या होती है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, है ना. आई होप इफ एवरीवन इज डन, वील मूव टू अ इम्पॉर्टेंट कमांड कॉल्ड गिट पुल. तो अब गिट पुल से क्या होता है कि आपके रिमोट में जो भी चेंजेस हैं और जो लोकल में जो भी चेंजेस हैं, अगर वो सिंक में नहीं है तो आप गिट पुल करते हैं. जैसे मान लो आप 4-5 डेवलपर की टीम के साथ काम कर रहे हो और आपका दोस्त सुबह सुबह उठ के कुछ कोड कर दिया है और आप दोपहर पे उठ के कोड कर रहे हो. तो आपको सबसे पहले गिट पुल करना है ताकि उसके जो चेंजेस हैं आपके सिस्टम पे आ जाए. तो उसको मॉक करने के लिए मैं एक चीज़ करता हूँ, ये test.md को अब गिटहब के अंदर भी आप एडिट कर सकते हो, ये यूआई के अंदर. तो मैं यूआई के अंदर ही चेंज करता हूँ. चलो, मैं यूआई के अंदर, थोड़ा ये लोड हो रहा है, test.md को मैं चेंज करूँगा और फिर उसको लोकल में पुल करूँगा. आई होप द इंटरनेट इज फाइन. लोड नहीं हो रहा है. रीडमी खोलते हैं. रीडमी खुल गया. रीडमी को एडिट करते हैं. रीडमी भी एडिट नहीं हो पा रहा है. जब भी कुछ नहीं चल रही हो तो गिटहब स्टेटस, बहुत सारे ये जो वेबसाइट्स होती हैं उनकी स्टेटस चल रही होती है, उनके पीछे से कुछ भी खराब हो रहा हो तो ये यहाँ पे दिखा देता है, लेकिन सब कुछ दिखा रहा है कि ऑपरेशनल है, कुछ भी फटा नहीं है. तो एवरीथिंग इज गुड. आई होप देयर इज सम इंटरनेट इशू विच इज़ वाई हम लोग एडिट शायद नहीं कर पाएंगे यहाँ से. एडिट अगर हो पाता तो अच्छा होता, पर कोई बात नहीं. तो गिट यहाँ से हम लोग, मैं क्या करने वाला था, ये test.md में जाके या readme.md में जाके मैं ये गिट एंड गिटहब के जगह पे गिट एंड गिटलैब कर देता. अब गिटलैब क्या है? गिटलैब भी गिटहब के तरह ही एक वर्जन कंट्रोल, मतलब कोड शेयरिंग रिपोजिटरी साइट है. गिटहब की तरह ही वो भी गिट मैनेज करता है. इट्स सेम लाइक गिटहब. तो उसको चेंज कर देता और फिर यहाँ पे गिट पुल करता अपने लोकल में. तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे जैसे मान लो ये सर्वर है गिटहब का सर्वर पे ये नई चेंजेस डिलीट कर दी गई हैं. और यहाँ पे तो ये वाली कमिट तक है. अब ये रिमूव लाइन वाली कमिट को सिंक करने के लिए हम लोग गिट पुल करेंगे अपने लोकल सिस्टम पे. तो गिट पुल करने भी क्या होगा कि ये जो सर्वर पे गिट रिपोजिटरी पे जो पड़ा हुआ है लेटेस्ट कोड, ये हम लोग फेच कर लेंगे और यहाँ पे लेटेस्ट हो जाएगा. इसका डेमो फेल हो गया. अब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं. आई होप या वी विल चेक दिस.
Merge conflicts, like I said, when two people are working on the same file, that is when merge conflicts occur. मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स कब आती हैं? जब एक ही लाइन पर दो आदमी ने कुछ ना कुछ कोड किया है या कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं, तब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आती है। तो गिट को मर्ज करने में दिक्कत हो जाती है। दो लोगों के पास से सेम तरह का कोड आ रहा हो, आई बिलीव, तो दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे b इक्वल्स टू लिखा है और आपके दोस्त ने b इक्वल 0 लिखा है, और दोनों पुश कर दिए सेम रिपोजिटरी पे, जैसे मान लो, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। कुछ ऐसा आ जाता है, ये लेस देन साइन गेट हेड, और फिर उसके बाद आपकी जो चेंज है यहाँ पे इन b इक्वल्स टू, और फिर आप जो दूसरे मर्ज कॉन्फ्लिक्टर है उसकी चेंज, और फिर यहाँ पे कोई कमिट हैश आ जाएगा। तो जब आप गिट पुल करोगे तो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। जब कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी पुश्ड होंगे तो ये दिखेगा आपको कॉन्फ्लिक्ट कंटेंट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स इन नंबर्स डॉट सी। हम मेरा जो एग्जांपल है ये नंबर्स डॉट सी फाइल है। ऑटोमेटिक मर्ज फील्ड फिक्स्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देन कमिट द रिजल्ट। तो फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, ये जो सही चेंजेस है b इक्वल्स टू, मान लो सही चेंज हम लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो ये सारी जो फालतू वाली चीज़ें ये हटा देते हैं। ये हटा दिया और फिर स्पेसेस को भी हटा दिया, तो फिर ये रिजॉल्व हो गया, और फिर उसके बाद पुश कर देते हैं, है ना। इसका डेमो तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। अब गिट लॉग के बारे में समझ, ऑनलाइन ये काम नहीं है तो गिट मर्ज के बारे में आप लोग धीरे से, तो अब गिट के बारे में समझते हैं पहले। तो चेंजेस यहाँ पे हो गई। मैं टर्मिनल में जाता हूँ और गिट लॉग समझाता हूँ। गिट स्टेटस कर लेता हूँ। स्टेटस से क्या होता है, बताता है कि जो है अप टू डेट नहीं है, अप टू डेट नहीं है। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो अब जैसे मैंने बताया था कि ये कमिट और ऐड करने के लिए एक ही कमांड होता है। तो ये गेट कमिट -am और फिर यहाँ पे मैसेज मॉडिफाइड रीडमी। तो इससे क्या होगा कि ऐड और कमिट दोनों एक ही स्टेप में हो जाएगा। ये करते हैं, ये हो गया। अब गिट पुश कर देते हैं, है ना। ये दोनों कमांड्स आपको याद रखने हैं। ये गेट कमिट -am से क्या होता है, सारे चेंजेस ऐड हो स्टेज हो जाते हैं और मैसेज भी कमिट हो जाता है, और गिट पुश से ये रिपोजिटरी पुश हो जाती है। अब गिट लॉग देखते हैं। गिट लॉग क्या है, ये जितने भी सारे कमिट्स किए हैं हमने, उसका एक लॉग दिखा देता है। तो ये देखो, कमिट, सारे कमिट का एक हैश है। ये SHA हैश होता है। ये सारे कमिट के साथ एक अटैच्ड होता है। ये ऑथर का नाम है, ये मेरा नाम है मिलिंद मिश्रा, मेरा ईमेल जो गिटहब से अटैच्ड है, और फिर डेट टाइम जो ये यहाँ पे जब जब कमिट किया है उसका डेट टाइम, और ये तो आपकी कमिट मैसेजेस। तो पहला कमिट था इनिशियल कमिट, उसके बाद ऐड फर्स्ट मार्कडाउन फाइल्स, मोर जेसन वैल्यूज एंड देन मॉडिफाइड रीडमी, है ना। ये हो गया। इससे बाहर निकलने के लिए कंट्रोल Z, है ना। कंट्रोल Z से अब मैं क्लियर कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। गिट लॉग से फिर गिट लॉग के बारे में बता दिया। अब जो है आई थिंक गिट रीसेट से आप पुराने कमिट में जा सकते हो। अब मैंने गिट लॉग आपको क्यों बताया, क्योंकि गिट लॉग से आपको सारे कमिट हैशेस पता चल जाते हैं। गिट लॉग -a से भी पता चल जाती है। ये यहाँ पे एक हैश, अगर मान लो अगर आपको पुराने कमिट वाले इस पे जाना है, जैसे मान लो ये मॉडिफाई किया, ये आपको नहीं चाहिए, मान लो कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, आपको पुराने वाले कमिट पे जाना है, तो आप गिट रीसेट यूज कर सकते हो। ये कमांड है। गिट रीसेट से क्या होता है, गिट रीसेट डैश हार्ड, यहाँ पे कमिट का जो हैश है, कमिट हैश डाल दोगे तो ये पुराने टाइम में चला जाएगा। तो जैसे मैंने ऊपर में बताया था
कि गिट यूज़ क्यों होता है, तो ये पुराने वर्ज़न पे भी जा सकता है। जैसे ह हर हर जगह पे हम लोग कमिट करते जा रहे हैं और वर्ज़न बनाते जा रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर का, तो वैसे ही अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, तो हम लोग पुराने वर्ज़न पे भी जा सकते हैं। तो ये उसके काम आता है। और फिर हम लोग गिट ब्रांचिंग के बारे में समझते हैं। ब्रांचिंग क्या होती है? तो ब्रांच क्या होती है? एक वर्जन होती है रिपॉजिटरी की। तो ब्रांच बनाने के लिए ईच ब्रांच हैज़ इट्स ओन कमिट हिस्ट्री एंड करंट वर्जन। गिट ब्रांच कैसे बनता है? तो गिट ब्रांच से पता चलता है कि कौन से ब्रांच पे हो आप। तो अभी हम लोग यहाँ पे दिख रहा है मेरे टर्मिनल में मेन, लेकिन अब उसको जानने के लिए हम लोग करेंगे गिट ब्रांच, है ना? मेन आ गया, कंट्रोल जी से बाहर निकल गया। और नया ब्रांच के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये थोड़े एडवांस यूजर्स के लिए है, तो ये आप देख सकते हो सिर्फ अभी के लिए। तो जैसे मान लो गिट ब्रांच, ब्रांच नेम लिखा तो ये एक नया ब्रांच बन गया, और गिट चेकआउट फिर उस ब्रांच का नाम लिखा तो उस ब्रांच में हम लोग स्विच कर गए। और नया सिंटैक्स ऐसा भी है, गिट स्विच और फिर ब्रांच का नेम, और दोनों को एक साथ ही करना है और फिर उस ब्रांच में स्विच भी कर जाना है, तो आप ऐसा लिख सकते हो गिट चेकआउट माइनस बी ब्रांच का नेम। तो हम लोग जल्दी से एक ट्यूटोरियल कर लेते हैं ताकि ये भी हो जाए। गिट ब्रांच डेवलप एक ब्रांच बना लेते हैं। तो गिट डेवलप एक ब्रांच बना लिया है, तो गिट स्विच, स्विच ज़्यादा आसान है, सुनने में भी अच्छा लगता है। गिट स्विच डेवलप, डेवलप, है ना? ऑटो कंप्लीशन भी हो जा रहा है यहाँ पे, देखो मान लो डेवलप पे टैब दबाया मैंने, ऑटो कंप्लीशन हो गया। तो डेवलप पे स्विच कर दिया। वापस से मेन में जाना है तो क्या करना होगा? गिट स्विच मेन, है ना? जल्दी से ये टॉपिक खत्म कर दिया है हमने। अब गिट मर्ज के बारे में समझना पड़ेगा, तो उससे पहले, so Git branch is like creating different timelines of same project. No, okay. Sorry for rushing through this topic. This topic is very important क्योंकि branches हर जगह काम आते हैं। जैसे मान लो आपको एक काम दिया गया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी में आप काम कर रहे हो, और सॉफ्टवेयर जो है एक जगह तक पहुंच गया है। जैसे मान लो आप ई कॉमर्स साइट बना रहे हो और उसमें एक नया फीचर डालना है, बिग बिलियन डे, फ्लिपकार्ट पे आप काम कर रहे हो, बिग बिलियन डेज आने वाला है, तो बिग बिलियन डे में नए फीचर्स आते हैं, नए बैनर्स आते हैं। तो उस फीचर को बनाने के लिए आप करंट वेबसाइट को तो ब्रेक नहीं कर सकते ना, तो उस वेबसाइट की ही आप एक ब्रांच निकाल लोगे। उस वेबसाइट का भी जो भी कोड है उसके स्नैपशॉट पे, वहां पे आप, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था गिट ब्रांच डेवलप, तो मेन जिस जगह पे है अभी जितना कोडिंग हो रखा है मेन ब्रांच पे, वहां से तोड़ के एक सेपरेट टाइमलाइन बन जाती है डेवलप की। अब डेवलप एक वो ब्रांच बना लिया वहां पे, तो इसको समझेंगे हम लोग थोड़ा सा एक्स कैली ड्रॉ, तो ज्यादा मजा आएगा। ब्रांचिंग थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जैसे मान लो जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा मान लो जो मेन है, मेन यहाँ पे चल रहा है, ये मेन ब्रांच है। यहाँ पे हमने इनिशियल कमिट किया, ये सारे जो गोले हैं ना, ये सारे मैं कमिट बना रहा हूँ, और ये जो लाइन है इनिशियल कमिट, है ना? फिर दूसरे में जैसे मान लो ऐड रीडमी, और यहाँ पे आते आते कोई और एक कमिट है, या कोई एक और कमिट है, जैसे मान लो ऐड test.md। अब यहाँ से आपको एक नया ब्रांच बनाना है, तो एक सेपरेट टाइमलाइन बन जाएगी। जैसे मान लो आपको किसी ने बोला डॉक्यूमेंटेशन आपको जीडीएससी की ठीक करनी है, तो इसकी ऐसा एक ब्रांच बना लो, फिक्स डैश डॉक्स। तो डॉक्स की कन्वेंशन, मतलब ये ब्रांच नेमिंग की भी कन्वेंशन होनी चाहिए। आपकी ब्रांच सिग्निफाई करना चाहिए कि जितना एफिशिएंट आप दिखोगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अगर आपका ब्रांच का नाम फिक्स है और स्लैश डॉक्स है, इसका मतलब क्या होता है कि आप फिक्स कर रहे हो, कुछ डॉक्स फिक्स कर रहे हो, तो उसका नाम अच्छी बात है। तो ये ब्रांच बन गया यहाँ पे, और जब इसका फिक्सेशन हो गया, 2-3 कमिट आप और कर लिए, मान लो यहाँ पे भी और कमिट होते जा रहे हैं मेन में,
फिर यहाँ तक पहुंचा मामला, और फिर यहाँ जाके आप मर्ज कर दिए। तो यहाँ पे मर्ज होता है, तो मर्ज के बारे में अभी भी सीखेंगे। तो मर्ज के वक्त में अगर मान लो सेम फाइल में दो जगह पे आ जाएंगे तब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, तो मर्ज रिजॉल्व एडिटर से आपको करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा एडवांस्ड हो जाता है, तो वो हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का सिनेरियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि गिटहब पे हो नहीं पा रहा है। तो अभी के लिए हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं एटलीस्ट, ताकि आपको जब कभी एक मर्ज कॉन्फ्लिक्ट दिखे तो आपको समझ में आए। तो मर्ज क्या होती है? टू मर्ज ब्रांचेस, टू मर्ज द ब्रांचेस, ब्रांच नेम विथ करेंट ब्रांच। जैसे मान लो हम लोगों ने अभी डेवलप बनाया, डेवलप एक ब्रांच है और मेन ब्रांच है। डेवलप ब्रांच में जाके कुछ चेंजेस करते हैं, चलो मर्ज तो कर पाऊंगा मैं, स्विच करता हूँ, गिट स्विच tch स्विच। अभी दिक्कत ये आ जाएगी कि ये लोकल में ब्रांच बना हुआ है और वहां पे ब्रांच नहीं बना है, तो हम लोगों को पुश करना पड़ेगा। पहले एक कमिट कर पुश करते हैं वहां पे, मतलब रिमोट में और कहीं पे नहीं, रिमोट में। तो यहाँ पे चलो कोड डॉट कर लेते हैं। तो कोड डॉट, ये देखो डेवलप यहाँ पे आ गया। गिटहब में बहुत बढ़िया सा फीचर है, यहाँ से आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। तो डेवलप का ये ब्रांच है। डेवलप में रीडमी में गए, गिट एंड गिटहब रिपोजिटरी फॉर GDSC स्टूडेंट्स, है ना। ये थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। अब देखो एक ही बार में, अब ये रटा देता हूं मैं, गिट ऐड। सबसे पहले क्या करना होता है? स्टेजिंग करना होता है। जो भी चेंजेस की उसकी स्टेजिंग करेंगे। तो गिट ऐड ऑल, सारे चेंजेस को स्टेज कर दिया। अब कमिट करने के लिए गिट कमिट मैसेज -m मैसेज चेंज्ड रीडमी कंटेंट। ध्यान से देखना, आपकी जो असाइनमेंट है ना वो भी ऐसी होगी, तो आपको थोड़े गुडीज भी मिल जाएंगे, आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ये हो गया। अब क्या करना है? गिट ऐड हो गया, स्टेज हो गया, कमिट हो गया, क्या बचा है? गिट पुश बचा है। तो गिट पुश कर देते हैं। पुश करने से, तो अब पुश करने में क्या है कि हमने जो है ये ब्रांच बनाई नहीं है वहां पे, तो इसीलिए हम लोगों को अपस्ट्रीम सेट करना पड़ेगा ओरिजिन का। तो अब अपस्ट्रीम क्या होता है कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है पर फिर भी बता देता हूँ। जैसे मान लो बात यहाँ पे चल रही है, मैं वापस जाता हूँ टाइम में, थोड़ा सा वापस गया। हाँ, तो जैसे मान लो ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो ओरिजिन या ये बात हुई ना, ये एक तरह से पॉइंटर होती है। अगर आपने सी पढ़ी होगी तो उसमें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो ये एक पॉइंटर होता है जिसको हेड बोलते हैं, हेड या ओरिजिन। ओरिजिन या इसको मास्टर, ओरिजिन किस पे पॉइंट कर रहा है? मेन ब्रांच पे पॉइंट कर रहा है। तो वैसे ही अपस्ट्रीम को सेटअप करना पड़ेगा, तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा काम, पुश हो जाएगा पूरा पूरा ये ब्रांच वहाँ पे रिमोट पे। तो ये देखो डेवलप का एक न्यू ब्रांच लिखा है, कंप्रेसिंग ऑब्जेक्ट, ये सारा ये क्या मामला चल रहा है? ये सारा ये कंप्रेशन चल रहा है, ताकि जो सर्वर पे है, क्योंकि ये सारा चीज़ सर्वर पे होता है, तो सर्वर पे हम लोगों को डिस्क मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से रखनी चाहिए। कोई भी मोटी फाइल्स हो वो सारे कंप्रेस होके स्टोर होती हैं। तो ये गिट अपनी इंटरनल कंप्रेशन करता है। तो इंटरनल कंप्रेशन करने के बाद थोड़े बहुत फाइल रिड्यूस होते हैं, और फिर उसके बाद ये अपना काम कर रहा है। ये कह रहा है नया ब्रांच डेवलप सेट टू ट्रैक ओरिजिन स्लैश डेवलप हो जा। हाँ, हो गया। चलो इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो अब देख लेते हैं अपना डेवलप में जाके हुआ कि नहीं है, ये ज़रा देख लेते हैं। यहाँ जाके रिफ्रेश मारता हूँ, देख लो अभी यहाँ पे दो ब्रांचेस आ गए हैं। पहले तो एक ब्रांच था मेन, अभी डेवलप भी आ गया है। डेवलप में क्या चेंजेस किए हैं हमने? रीडमी में रिपोजिटरी फॉर GDSC स्टूडेंट्स है। अब मर्ज में हमने क्या सीखा था कि मर्ज कैसे करते हैं? गिट मर्ज ब्रांच नेम टू मर्ज द ब्रांच, ये फलना ब्रांच विद करेंट ब्रांच। तो जिस ब्रांच में मर्ज करना है आपको, उस ब्रांच में आपको स्विच करना पड़ेगा। तो इसको मैं ग्राफिकली थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे मान लो ये पूरा मैं डिलीट करता हूँ, है ना। यहाँ पे चलो ये थोड़ा सा पेन ले लिया, बड़ा कर देता हूँ।
ये थोड़ा सा ये मेन चल रहा है, यहाँ से मान लो डेवलप निकाला, यहाँ हम लोगों ने एक ही कमिट किया है, तो हम लोगों ने कितना कमिट किया है उसका डायग्राम वैसे ही बनाते हैं तो थोड़ा सेंस भी बनेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 5 कमिट्स हुए हैं, और 5 कमिट्स मेन में देखते हैं मेन में क्या हुआ है। मेन में यहाँ तक 4 कमिट, चौथे कमिट में हम लोगों ने ब्रांच निकाल दिया है, तो 4 गोले बनेंगे यहाँ पे। ये बनाते हैं हम लोग 4 गोले, है ना। यहाँ से डेवलप निकाल लिया। अब हम लोगों को वापस मर्ज करना है मेन में, तो इस जगह पे हम लोगों को मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए पहले मेन में आना पड़ेगा ना। ये मेन है, ये आपका डेवलप है। ये मर्ज होने के बाद भी चल सकता है ये ब्रांच, लेकिन जनरली मर्ज होने के बाद ये डिलीट कर दिया जाता है ब्रांच को। ये गुड प्रैक्टिस होती है। तो हम लोग चलो अभी मर्ज करते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा कि मर्ज करने के लिए गिट मर्ज ब्रांच नेम डालते हैं और वो करंट ब्रांच में मर्ज कर देता है। तो करंट ब्रांच हमारा डेवलप है, तो पहले गिट स्विच करके मेन में जाते हैं गिट। और ये ब्रांच को मर्ज करने से पहले सारे चेंजेस पुश होने चाहिए, तो गिट स्टेटस करके देख लेते हैं कि क्या हाल है। गिट status, है ना। गिट स्टेटस अप टू डेट है भाई, क्लियर कर लो। गिट गिट स्विच, स्विच से स्विच होता है, स्विच मेन में स्विच कर लिया। अब गिट में मर्ज कर देते हैं, मर्ज डेवलप था नाम, मर्ज कर दिया, मर्ज हो गया, बढ़िया हो गया मर्ज एकदम। चलो अब इसको सारे चेंजेस को पुश करना है, तो वापस तीन कमांड्स है, लेकिन 3 कमांड्स को आप 2 में भी बदल सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, गिट कमिट ऑल और फिर मैसेज डाल दो, मर्ज डेवलप इनटू मेन ब्रांच, है ना। और आई एम ब्रांच जो है कह रहा है अहेड है, तो अब गिट पुश कर देते हैं, गिट पुश बाकी है, गिट पुश कर दिया। चलो गिट पुश हो गया है, अब चेक कर लेते हैं कि क्या चल रहा है भाई। यहाँ पे चेंज किया तो ये देखो मेन जो है, मेन ब्रांच में ये आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट कर गए हैं, है ना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा ये, पर धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आप अपने लोकल में, कोई शर्माना नहीं है। कुछ अगर आपको शर्म आ रही है तो आप अपने प्राइवेट रिपोजिटरी में भी कर सकते हो ये सारा काम, ताकि आपको गिट से प्रैक्टिस हो जाए। एक रीडमी फाइल में आप खेल कर सकते हो, ताकि आपको समझ में आते जाए। तो और मैं थोड़ा, है ना, मर्ज तो समझा दिया। मर्ज जिसको जिसको समझ में आया वो यस कर दो, और जिसको जिसको नहीं समझ में आया वो भी बता दो कहाँ दिक्कत आ गई। पुल रिक्वेस्ट में बताओ, है ना। बस 2 ही लोग को समझ में आया, 2-3 लोग को बहुत लोगों को नहीं समझ में आया लगता है, पर कोई बात नहीं, है ना। समझ में आया तो आपको बॉटल भी मिल जाएगी आपको रिवॉर्ड भी है समझने के लिए। तो अब इसका एक और एडवांस टॉपिक है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुल रिक्वेस्ट। अब पुल रिक्वेस्ट क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। कि जब भी आप एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हो ना, तो आपको क्या ध्यान देना है कि आप एक सबसे पहले तो ओपन सोर्स कोड बेस को पढ़े, फिर उसको आप फोर्क किए। फोर्क और क्लोन में 2 अंतर है, तो फोर्क किए आप अपने गिट रिपोजिटरी पे, तो उस पे चेंजेस किए, और वो जो भी चेंजेस हो गए हैं तो आपको उसको मर्ज करना है आपके उस पे। ओपन सोर्स रिपोजिटरी मेंटेनर वाले ने कह रखा होगा कि जितने भी मर्ज पीआर रिक्वेस्ट्स हैं वो हम लोग इस फलाना ब्रांच पे एक्सेप्ट करेंगे। तो मर्ज एडिटर के वक्त में पॉइंटर आती है कि कौन से ब्रांच से आपको कौन से ब्रांच में मर्ज करना है। वो जैसे हम लोगों ने डेवलप को मेन में मर्ज किया था, वैसे ही पुल रिक्वेस्ट के डॉक्यूमेंट, हमेशा डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है आपको। जब भी आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करोगे
तो आपको गिटहब पे जाना है, गिटहब पे जाओगे और पॉपुलर ओपन सोर्स रिपॉजिटरीज ढूंढोगे और उसमें गुड फर्स्ट इश्यूज को देखोगे। गुड फर्स्ट इश्यूज को देखने के बाद वहां पे आपको डॉक्यूमेंटेशन सारी, जैसे हम लोग एपराइट शायद अभी चल रहा होगा, एपराइट होस्ट करता है बहुत सारे वो हैकाथॉन वगैरह वो करता है, हैकाथॉन नहीं, हैकटोबर फेस्ट चल रहा है ना अभी, वो करता है, तो ये शायद कर रहा होगा, तो बहुत लोगों ने पीआर डाले भी होंगे। देखो ये दो तो गिट पॉड फिक्स्ड नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है गुड फॉर हैकटोबर फर्स्ट एक्सेप्टेड। चलो ये देखो, ये एक पीआर है, पुल रिक्वेस्ट है, पीआर शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में पीआर को पुल रिक्वेस्ट, मतलब लॉन्ग फॉर्म में पीआर को पुल रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो ये पुल रिक्वेस्ट में आपका डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे मैंने आपको मार्कडाउन सिखाया, मार्कडाउन की नॉलेज आपकी यहीं यहाँ पे काम आएगी। आप एक अच्छा सा पीआर लिखोगे कि यह यहाँ पे लिखा है व्हाट डज दिस पीआर डू, एडिंग दिस, ये फलाना फलाना, ये ऐसा टेस्ट प्लान सक्सेस ऐसा हो गया है, इसके हिसाब से ये गिटहब एक्शन का YML पोस्ट कर रहा है। ये YML एक स्क्रिप्ट जैसा होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही होता है, पर वो स्क्रिप्ट होता है, तो उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। और ये रिलेटेड पीआर और इश्यूज को यहाँ पे टैग कर दिया है, और चेकलिस्ट ये सारे बने रहते हैं, तो यहाँ पे आप पीआर अच्छे से लिख सकते हो। जब आप यहाँ पे जाओगे, ये GDSC पूर्णिमा यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है, तो यहाँ पे सबसे आपको पहले ही 4 लोगों ने फोर्क कर दिया, अरे वाह बहुत ही स्मार्ट। तो इसको फोर्क कर लेना है। फोर्क करने के बाद आप इस MD को सबसे पहले तो अपने उसमें करना है, ये क्लोन क्लोन करने के लिए मैंने आपको बता दिया था। क्लोन करने के बाद आप जो है यहाँ पे ये देखो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, जैसे वेलकम में ई छूटा हुआ है, बाकी मैं बताऊंगा नहीं तो फिर तो प्राइस मेरा हो जाएगा, है ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये आप ठीक कर लो, उसको कमिट कर लो, और फिर उसके बाद यहाँ पे ओपन पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं उतना सा करके दिखा देता हूँ, एक जरा सा एकदम जरा सा दिखा देता हूँ, बाकी आपको करना पड़ेगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा बाहर चला जाता हूँ सेल्फ में, शायद मैंने क्लोन कर रखा है, गिटहब वर्कशॉप नहीं, गिट क्लोन करने के लिए गिट क्लोन, और फिर उसके बाद ये जो है यूआरएल किया क्लोन, उसके बाद चेंज डायरेक्टरी, फिर कैपिटल गिटहब वाले में जाएंगे, गिटहब वर्कशॉप, और फिर उसके बाद थोड़ा सा कोडिंग करेंगे भाई, कोडिंग करते हैं थोड़ा एकदम मजे से। ये देखो रीडमी में क्या क्या दिक्कतें हैं, एक दिक्कत तो मैं दिख गई मेरे को, वेलकम में ई छूटा हुआ है, तो मैं बस एक ही चेंज करूंगा, और देखो एक चेंज करके पीआर करके दिखा दूंगा, इसके सारे चेंजेस आपको ठीक करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, गिट ऐड ऑल कर लिया ऐड, फिर गिट कमिट माइनस है, अपना मैसेज का स्ट्रिंग दे दो, रिजॉल्व नहीं, स्पेल चेक, स्पेलिंग फिक्स्ड, स्पेलिंग अब स्पेलिंग गलत है तो जज मत करना, गिट पुश, है ना। ये 3 चीजें रटनी आप। Why did you specify HTTP link SSH? oh हाँ, बहुत तरीके होते हैं, मैं और सिखाता हूँ आपको। गुड क्वेश्चन स्नेहा। I'll also help you understand what are the 3 other methods to clone a repository, बट वो थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ कि पीआर कैसे किया जाता है। तो इतना तो हो गया, फिर उसके बाद ये जो है ये मेरे फोर्क में हुआ है चेंजेस, तो ये मेरी एक अपनी ब्रांच हो गई है। तो कंट्रीब्यूट करने के लिए आप क्या करोगे, ओपन पुल रिक्वेस्ट दबाओगे, यहाँ कंट्रीब्यूट दबाया, और स्पेलिंग फिक्स्ड यहाँ पे मैंने द स्पेलिंग वाज इम्प्रॉपर, यहाँ पे जितना आप डिस्क्रिप्टिव हो सकते हो उतना होना अपने पुल रिक्वेस्ट में। तो एक पुल रिक्वेस्ट ओपन कर दिया है मैंने, और ये यहाँ पे GDSC पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के उसमें हो गया है पुल रिक्वेस्ट ओपन, पहला पुल रिक्वेस्ट। तो सबसे पहला बॉटल मेरे पास आएगा,
मैं तो जीत गया। तो सब कोई देख लो। ओके, जोक्स असाइड, पुल रिक्वेस्ट के बारे में समझ लिया हमने। और अब जो है, अब Q&A का टाइम है, क्योंकि अब सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। मेरे लिए, अगर इफ पीपल वांट टू कनेक्ट विथ मी, दिस इज माय सोशल n.millen.live, ये मेरा लिंक्डइन है। और मेरा गिटहब है gh.millen.live। ये डीएनएस रीडायरेक्ट है, तो इससे मैंने रीडायरेक्ट किया है अपने सोशल प्रोफाइल्स। तो आप मुझे लिंक्डइन और गिटहब पे कनेक्ट कर सकते हो, और बाकी मेरे सोशल्स मेरे पोर्टफोलियो पे है। तो सबसे पहली असाइनमेंट जो है आपकी, कि आप गिटहब को समझोगे, सबसे पहले अपने रिपोजिटरीज में जाके बनाओगे, अपना खेल वगैरह करोगे कि कैसे किया जाता है। गिटहब सीख जाओगे तो आप अपनी ऐसी खुद की पोर्टफोलियो भी होस्ट कर सकते हो गिटहब पेजेस के द्वारा। आप गिटहब एजुकेशन पैक खरी लाइक लोगे आप, जैसे आप सबके पास वो होगा, स्टूडेंट ईमेल, गिटहब एजुकेशन पैक। तो एजुकेशन पैक में हमारे पास बहुत सारे डोमेन्स फ्री आती हैं। हाँ, तो ये रहा आपका। हाँ, शुभांकित ने शेयर कर दिया है ये गिटहब का लिंक, जहाँ पे आपको अपनी असाइनमेंट करनी है। तो आई थिंक फर्स्ट फ्यू पुल रिक्वेस्ट्स को हम लोग देखेंगे, है ना। मेरी मेरी जो है वो मर्ज हो चुकी है, यू कैन सी हियर। आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट इट। बाकी अब थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना चाहता तो हूँ मैं, पर वो थोड़ी एडवांस्ड है। तो इफ शुभांकित अलाउज मी, आई शेयर अ फ्यू कूल ट्रिक्स अबाउट गिटहब एंड गिटहब प्रोफाइल कैसे मेंटेन किया जाता है, वगैरह वगैरह एज वेल, और ऑल्सो केटर ऑल योर क्वेश्चन एंड आंसर्स। I hope you all could understand what Git and GitHub was. So Pankit is saying that you should continue further on and go in detail. I should continue. Like all the tricks. Okay, cool. So, जैसे the first thing that I told you about good commit messages, the first good thing that I found through my research experience was कि आप इमोजी इमोजी लॉग यूज कर सकते हो। Okay, I'll also repeat after these tricks. Okay, so the first cool thing that I found is emoji log. Emoji log. Emoji log नहीं, logo नहीं, emoji log. Emoji log is a simple little script written by Ahmed Awais, which helps you generate nice commit messages. देखो, कमिट के शुरू में आप ऐसे मीनिंगफुल स्निपेट्स डाल सकते हो। जैसे कुछ भी नया कर रहे हो तो ये नया का स्निपेट डाल सकते हो, इम्प्रूव कर रहे हो तो इम्प्रूव का स्निपेट आ जाएगा, फिक्स कर रहे हो, जनरली ये सारी ही चीज़ें करते हैं कमिट करते वक्त। रिलीज हो गया, छोटा सा एक आइकन भी आ जाएगा आपके कमिट मैसेज के आगे, टेस्ट कर रहे हो, ब्रेकिंग कर रहे हो। मस्ट साउंड लाइक एन ऑर्डर rather than a sentence. Is that true? Yeah, it should be in third person, I believe, but we can read about good commit me- messages guide. I hope we can find something good to read. Commit message guidelines. I believe किसी ने gist बना के रखा है, GitHub gist. Uh, Short 72 characters or less summary, more detail, explanatory text. Wrap it up in 72 characters, blank line separating summary from body and critical, unless bullet points are okay too. CP, okay, very big git commit list. तो ये आप पढ़ सकते हो, but generally I think code
There were a few things. Commit guidelines, GitHub. I'll share a few commit guidelines in your repository as well. वहां से आप लोग चेक कर सकते हो। तो इसके बारे में समझते हैं, ये जिनके पास गिट बैश है वो ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक बैश स्क्रिप्ट है। बैश भी एक लैंग्वेज होती है। तो बैश, yeah, Shubhankit is also correct. So you can copy this bash script and paste it in your .bash rc file. .bash rc file क्या होती है? आपके जो ये जो कोड होती है ना, ये रूट डायरेक्टरी cd और रूट में चले जाओगे तो यहाँ पे कोड डॉट बैश rc एक फाइल होती है जो, रिमेंबर माय डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे ये आप पेस्ट कर सकते हो, ये अपना जो भी है, ये स्निपेट। तो आप जब भी जी कैप लिखोगे, जी न्यू लिखोगे, तो ऑटोमेटिकली न्यू के साथ आप कमिट मैसेज लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारा गिट ऐड गिट कमिट वो सारा एक साथ ही हो जाएगा। तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एक बार मैं करके दिखा दूंगा बाद में। ये यहाँ पे है। This was the first little trick that I had for you. Um, a few other things that you could also do is host your own small little portfolio. जैसे आप लोग HTML CSS सीखोगे तो आप लोग खुद का एक वेबसाइट बना सकते हो। जैसे मैंने एक मॉडर्न फ्रेमवर्क का यूज़ किया है और मैंने milanmishra.com खरीद के उस पर होस्ट कर दिया है। तो वैसे ही आप लोग खुद की भी एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें डाल सकते हो। ये सारे कमिट ग्राफ्स हैं। ये गिटहब में कोड करने का ये एक फ़ायदा होता है कि आप ये आपका प्रूफ ऑफ वर्क है कि आपने कितना काम कर रखा है, वो ऑलरेडी दिख रहा है आपके रेज्यूमे में। अच्छा लगेगा ये सारी कोड फ्रीक्वेंसी। कोई भी रिक्रूटर आपका प्रोफाइल देखेगा तो ही विल फाइंड इट रियली अट्रैक्टिव एंड देन potentially hire you. And you could also, because open source is a really great thing now, people get remote jobs as well, so a good thing. Do you want me to repeat anything? If there is something specific you want me to repeat, then I will do that. Otherwise we can wrap it up. I think it was a very good session that I felt I had with you all, and all the best for your uh, assignment, I guess. I think that's. Can you clarify? Oh, yes. SSH and okay, sorry, I missed that doubt. Okay, so there are a few ways we can clone. We can clone using this sample SSH link. तो SSH से क्या होता है कि आप जो ये सर्वर पे पड़ा है ना, ये जो SSH का लिंक है, ये कैसे, if anyone, yes, if anyone has any doubt you can unmute and speak yourself. तो ये एक SSH ID है, ये git@github.com ये मेल है और ये उसकी रिपोजिटरी का नाम है और यहाँ पे ये git का लिंक है, ये SSH लिंक है। तो how to clone using SSH. ओके, सो यू कैन ऑल्सो क्लोन यूजिंग SSH। तो लेकिन आपको अपने SSH की कीज सेटअप करनी पड़ेंगी। SSH आपका जो SSH टोकन है वो गिटहब से आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पे सेटिंग्स में जाके लेना पड़ता है। तो वो आपको सेटअप कर देंगे, वो थोड़ा सा कम्बरसम होता है इसीलिए लोग जनरली यूज़ नहीं करते। ये SSH आपको तब काम आएगा जब आपको एक VPS मिलेगा। आप कोई बड़ी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में जाओगे तो वहाँ पे गिटहब यूज़ नहीं होगा, तो वो आपको SSH कीज़ आपको दे देंगे और वो आपसे SSH से क्लोन कर सकते हो आप। आपका जो टर्मिनल सेशन है वो वहाँ पे SSH होगा। अब SSH क्या होता है उसको समझाने के लिए मुझे आपको कीज़ समझानी पड़ेंगी कि कीज़ कैसे मेंटेन किया जाता है, पब्लिक की, प्राइवेट की क्या होता है, तो वो उसके लिए आई थिंक आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। तो आई थिंक अ सिंपल गूगल सर्च कैन हेल्प यू।
how to SSH set up my GitHub account locally। तो आप यहाँ से आप बहुत, ये देखो SSH, अपना SSH की बनाना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। और फिर दूसरा तरीका क्या था, एक गिट GHCLI है। GHCLI और आसान है, GH रेपो क्लोन और फिर ये इसका नाम। ये देखो ये कितना आसान है, ये और दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैं एक टेम्परेरी डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे ये किया, तो GH पहले तो इंस्टॉल होना चाहिए आपके, ये GH जो CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस इंस्टॉल होना चाहिए। GH फिर रेपो फिर क्लोन फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, या तो आपके आपके अकाउंट का नाम, और फिर रिपोजिटरी का नाम। ये देखना फटाक से क्लोन हो जाएगा, ये वो क्लोन होगा फटाक से। देखो मेरे में हर एक लिनक्स सिस्टम में पैकेज मैनेजर होता है। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू टू यूज लिनक्स सिस्टम्स। अगर आप विंडोज पे भी हो तो आप WSL यूज करो, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, और वहाँ पे आप लोग apt get से वैसे इंस्टॉल कर सकते हो GHCLI। तो GHCLI ये आपका दूसरा टास्क हो सकता है, पर ये थोड़ा एडवांस टास्क है, जिसको थोड़ा बहुत आता है गिटहब वही करे, है ना। ब्रू इंस्टॉल GH, मैक के लिए मैं मैक पे हूँ तो मैक इधर आ रहा है, तो विंडोज़ पे हूँ होता तो विंडोज़ का आता, है ना। ऐसा फिर ऐसे थोड़े बहुत यहाँ से आप PR चेकआउट भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, सीख सकते हो। आई होप स्नेहा योर डाउट वाज क्लैरिफाइड। मैंने SSH आपको नहीं समझाया, पर कैसे होता है तो वो एटलीस्ट मैंने बता दिया कि SSH से क्लोन कैसे करते हैं। दोनों इंटरचेंजेबल है, ये तीनों तरीके से कर सकते हैं। और बाकी आप कोड स्पेस भी कर सकते हो, इंटरनेट पे ही आप अपना VS कोड ब्राउजर पे VS कोड चला सकते हो, वो भी इंटरेस्टिंग है। हितेश चौधरी हैज अ lot of tutorials on code spaces, so you can watch his YouTube channel and other YouTube channels, you know। I think that was it. If anybody has any doubts, please let me know। Okay, cool, thank you, that's all I guess। हेलो I हेलो, hope it। एम आई सर ऑडिबल? सर क्या आप Q&A सेशन करा सकते हो अभी, जो कि हाँ हाँ टाइम बिल्कुल, अप होने वाला है। हाँ हाँ हाँ, Q&A session, and if anybody has any doubts they can unmute and speak up, all about Q&A। ओके, Q&A वो ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा क्या? हाँ, Q&A में क्वेश्चंस आप अपने पोस्ट भी कर सकते हो, अनम्यूट करोगे तो ज़्यादा आसान है, हैंड टू हैंड आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा। असाइनमेंट आपने समझ लिया, आई थिंक इफ शुभांकित वांट्स टू क्लैरिफाई द असाइनमेंट ही कैन डू दैट एज वेल। Yep, I'll explain in the end. ओके, थैंक यू। If people have no doubts, at least confirm me if you guys have understood what the flow of GitHub is। और ये असाइनमेंट अगर आप कर पाओगे तो आप बस एक छोटा सा yes दे दो, so that I can confirm that I have delivered my slides well enough। Okay, Siddhant says yes, just completed, awesome, awesome। Okay, need 2 minutes, okay, cool, yes, yes, great, great। So this has nothing to do with it. Oh, virtual box password। I don't have experience with virtual box, Sneha, I'm so sorry, I cannot help you with that। But हाँ, password भूल गए हो तो I think there is no way out, आप log in कर पाओगे। मतलब फिर से सेटअप करना पड़ेगा आपको OS। But yes, a lot of yes, so it's a very good thing। So this was your first step to open source development।
तो आप इससे अपना प्रोफाइल भी बना सकते हो। दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ लेवरेज। इसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे आपके, वो आप सारे प्रोजेक्ट्स आप अपने खुद के गिटहब पे कमिट करते जाओ। जितना भी थोड़ा सा भी एक लाइन भी कोड करो ना, कमिट कर दो रोज के रोज एक कमिट। आपका ये हरा एकदम हरा बत्ती दिवाली बन जाएगी यहाँ पे एकदम। Does anyone have any more doubts before we end the session? Yep. Any more doubts? Okay. We thank you everyone, and we hope that you all had a very good learning experience. On behalf of GDSC and Purnima University, we extend a heartfelt gratitude to Mr. Milan for taking out time for us. Thank you, sir. Yep. Thank you. It was a great pleasure having you. One sec. Shubhankit was asking not others to leave. So thank you for inviting me as well. It was a really great experience. And with that, I request all the audience to please share their experiences on social media such as Instagram or LinkedIn. Don't forget to tag GDSC, Purnima University, Mr. Milan Mishra, and also mention the hashtag Developer Student Club. We thank you all for being a kind and cooperative audience. Stay connected with GDSC for more such events. And with that, I wish you all good night and happy learning. If anyone has any doubts regarding the assignment, they can stay after the meeting as well. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Milind sir. Thank you, sir. If you guys don't mind, I can leave the meeting if Yep. if, Yes, if sir. you You have. can leave. Okay. Thank you. It was great meeting you guys. Thank you. राहुल, आपका जो असाइनमेंट है वो गिटहब के ऊपर है, तो आपको उस लिंक पे जाना है एंड वहाँ पे जाके उसको फोक करना है एंड उसका जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, एक सेकंड मैं कोई सी भी मिस्टेक्स समझा को देता हूँ सोल्व कर। सबको क्या बेसिकली अपना असाइनमेंट है। देखो, मैं एक रेपो की लिंक शेयर करूंगा आप लोगों को। जैसे कि भैया ने अभी सेम कमिट किया ना, पहले उसको क्लोन किया, फिर उसमें चेंजेस किए, फिर उसको पुश किया, कमिट मैसेज लिखा अच्छा सा, तो मैंने उसको मर्ज किया। तो जिन जिन की भी ये अपनी पुल रिक्वेस्ट मर्ज होगी, सबको मतलब जो टॉप 3 बंदे होंगे ना, हमारे जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सबसे पहले कमिट किया, उनको हम प्राइजेस देंगे। अब जो हम रेपो की लिंक दे रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे एरर्स हैं, लिटरली बहुत सारे। तो जो भी जितने ज़्यादा उसमें से एरर फाइंड करेगा, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन एरर है, कोई भी कोडिंग रिलेटेड कोई भी एरर नहीं है। आपको बस ग्रामेटिकल एरर्स या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स जो भी है उनको करेक्ट करके कमिट करना है। और जो सबसे स्टार्टिंग के 3 मेंबर्स होंगे जो कमिट करेंगे, उनको हमारी साइड से हम गिफ्ट देंगे, वो भी 26 को कॉलेज में। ठीक है, मैं ग्रुप में एक और बार शेयर कर दूंगा इसके लिंक। तो प्लीज़ ट्राई करना कि लास्ट डेट वैसे इसकी 22 है असाइनमेंट की, बट ट्राई करना कि आज ही में पॉसिबल हो जाए। ठीक है, सब समझ गए? किसी को कोई डाउट गिटहब इसके रिलेटेड कोई Q&A नहीं पूछ पाया सर से? ओके, तो होप यू गाइस लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम टुडेज वर्कशॉप। तो अपने जो भी एक्सपीरियंस है, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, हमें प्लीज़ सोशल मीडिया पर टैग करके बता देना, वरना हम एक फीडबैक फॉर्म रिलीज़ करेंगे आज। उसके थ्रू आप भी हमें बता सकते हो कि हमें क्या नेक्स्ट टाइम न्यू चीज़ें करनी है या नहीं करनी। ठीक है, और जो भी इसमें प्रेजेंट है पार्टिसिपेंट्स, काइंडली मुझे अपने ईमेल्स डीएम पर्सनल मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, ताकि हम आपको सर्टिफिकेट सर्कुलेट्स कर पाएँ। ठीक है, शुभांकित जैन मेरा नाम है, ग्रुप का एडमिन सेक्शन में देख लेना। जो भी प्रेजेंट है प्लीज़ टाइम टू टाइम आज ही भेज देना मेरे को अपनी ईमेल्स, ताकि हम आपको सर्टिफिकेट्स जल्द की जल्द दे सकें। हाँ, कोई सी भी ईमेल जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो लीव कर सकते हैं आप सब। थैंक यू फॉर कमिंग।